اور اب خبر تفصیل سے ڈی جی پولیس دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں جموں کشمیر میں امن کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے بضد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام اس طرح کی حرکتوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جب اقلیتی طبقے کے لوگوں کا قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈی جی پی نے ایسے واقعات میں کمی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے پاکستان سے منشیات اور نقدی بھیجی جا رہی ہے۔ ڈی جی پی کے مطابق SIA، SIU اور NIA بھرپور تال میل سے کام کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میرا اشارہ بڑا صاف ہے، جو پاکستان نواز فورسز ہیں، پاکستان کی ایجنسیز ہیں جنہوں نے جموں کشمیر میں ہمیشہ تشدد کا کھیل کھیلا ہے، جن کو امن جہاں پر پسند نہیں ہوتا، میرا اشارہ ان کی طرف تھا۔ میں اپنے بچوں کو، نوجوان ساتھیوں کو آگاہ کرتا کہ اب ان سازشوں کو ناکام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جہاں پر امن اور شانتی کے ماحول کو اور پختہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میرا اسی طرف اشارہ تھا۔ یہ سب ہم نے دیکھا ہے کہ جو اٹیکس ہیں ان میں تو کافی کمی آئی ہے، لیکن جو یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہے، کیا ایک نیا موڈس آپرینڈی ہے؟ اس میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کو ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کو بہت گہرائی سے جا کر کے دیکھا جاتا ہے اور کاؤنٹر میجرز لیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے بچے کچھ جو نشان ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے، اس کے لیے کوشش بالکل دن رات رواں ہے اور وہ جاری رہے گی۔ بڈگام میں ایک مرتبہ پھر انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا۔ یہاں ایک پھر سے قتل کی واردات رونما ہوئی۔ اس مرتبہ سوئبگ بڈگام سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے کئی ٹکڑے کر مختلف مقامات پر چھپانے کی کوشش کی گئی۔ دراصل 7 تاریخ کو ایک لڑکی گھر سے لاپتہ ہوئی تھی اور 8 تاریخ کو اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس نے تفتیش کے دوران اومپورہ بڈگام کے 45 سالہ شبیر احمد وانی کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ کل شام کو شبیر نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ پولیس نے لاش کے حصوں کو بڈگام ریلوے اسٹیشن کے آس پاس 3 مختلف مقامات سے برآمد کیا۔ اس سے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں نے قاتل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ SSP بڈگام نے میڈیا کو اس پورے معاملے کی جانکاری دی۔ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ انویسٹیگیشن میں ہم نے ٹیکنیکل سپورٹ، ٹیکنیکل ایویڈنس کا سہارا لیا اور کافی وٹنسز کو، کافی خاص کر میں بڑا شکر گزار ہوں جو گھر والے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بڑا سپورٹ کیا، کلوز پرووائڈ کی۔ جو ہمیں کلو ملتا گیا اس کے بیسس پہ ہم نے کافی سسپیکٹس کو لایا۔ تو اسی کڑی میں ایک سسپیکٹ ہے جو شبیر احمد وانی، جن کا نام ہے عبدالعزیز وانی، جو اومپورہ میں رہتے ہیں، موہن پورہ، ان کو بھی لایا گیا ایز پر ٹیکنیکل ایویڈنس، اور ہمیں کلو ملا تھا دیٹ ہی میں بی انوالوڈ۔ تو اس کی بنیاد پہ ہم نے شبیر احمد وانی کو لایا، اسے سسٹینڈ انٹروگیشن کیا، سسٹینڈ کویشچننگ کی۔ جو اس نے کنفیشن کیا، اس کے ڈسکلوجر پہ ہم نے اس کے گھر پہ گئے اور وہاں سے اس کے احاطے سے، کیونکہ ڈیڈ باڈی کے کافی حصے کیے گئے تھے، تو جو ان کا سر ہے وہ گھر کے احاطے میں ہی ملا ہمیں۔ اس کے بعد جو مین باڈی تھی ہمیں، جو فرام نیک ٹو ہر ٹارسو، وہ ہمیں برج کے انڈر ملی تھی وہاں پہ۔ تو اس کے جو لمس اور جو آرمز ہے وہ ہمیں ایک ٹینکی میں ملی جو ان کے گھر کے پاس تھی۔ تو اس کے بعد جو فردر جو ان نے انکشاف کیا، اس کی بنیاد پہ وی کوڈ ریکور دا ویپن آف آفینس، جو ایک نائف ہے، اور جو ہم نے جو کرائم سین ہے اس کو ہم نے سیکیور کیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جو FSL بھیجتے ہیں، ہم وسرا بھیجتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور جو فائنل اوپینین جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ کوچنگ دپان مے گھن کلاس دن اگر ماز دن کہین چلو ٹھیک ات دوران کور خاندانس ست فون اصل پہ تمس کور ویڈیو کال تہ اصل پہ خاندان کورس پہ 5 منٹ بعد بی فون ات فون بزی پتہ کرنس 5 منٹ بعد بی فون ات سوچ گسا شام تین پران ات آو کن پتہ دتک پولیسس پرچہ پتہ اونک سہ نفر تہ درا یہ قاتل سہ ون تین جیلس مز ون اپر تہ سہ جیلس مز تمی کور تمی
मोरी मीन पेन कित पट बरुन गाड़ी कित पट खागिन कनि फंद खागिन इंजेक्शन कोरना सा या सा बेखदी हुन दावा फल दितना सा पाई छन यल पाई लागे तेल गछना तम साथ मकलोइस अनहुन पाई का सारी छ बेन वाल कोर मोल आज गो यमिस पर पागा गस बिकिस पेठन अस्ति छ कोर माज अस्ति छ द्रामच बाजार आज गो यमिस कोर पर पागा गस एस पे हमारे लिए दिल दहलाने वाका है और पुलिस की कार्रवाई भी मतलब ये अगर वो जल्दी एक्शन लेते तो शायद इस बच्ची की जान बच सकती थी। वो इसमें पोता रहे उनको जो सस्पेक्ट था उसको हमने पहले ही दिन ला के दिया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन उसको वापस छोड़ा, उस तरह से तफ्तीश नहीं हुई। फिर आखिरी जब प्रेशर आया ऊपर से तफ्तीश के बाद उसी ने वही मुलजिम निकला, मतलब जिसको हमने बताया था वही मुजरिम निकला। तो हम मतलब यही कहते हैं कि उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बडगाम में बेदर्दी से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। लोगों ने इस बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सबसे बड़ी जो लापरवाही यहाँ पे हुई है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि 7 दिन पहले इसका FIR रजिस्टर हुआ है, 7 दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहली इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही ज़रूर हुई है। 7 दिन बाद आज उस बच्ची की लाश टुकड़ों में पाई गई है। ये एक सानिया हमारे कौम के लिए भी है और पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश कर सकते हैं, देखिए इसमें हम पुलिस का कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करे। जिला भद्रवाह में एक टीचर स्कूल में शराब के नशे में धुत पाया गया। ऐसी सूरत-ए-हाल देखकर गांव वालों ने सरकारी प्राइमरी स्कूल को ताला डाल दिया। बल्ला तहसील गजबत पंचायत के तहत आने वाले चंटी गांव में शनिचर के दिन ये वाकया पेश आया। टीचर के पास शराब की बोतलें भी थी। भद्रवाह शहर से 32 किलोमीटर दूरी पर यह इलाका पड़ता है। पहाड़ी की चोटी पर वाक़ गांव टाटोरा में यह स्कूल वाक़ है। यहाँ टीचर विक्रम सिंह ने कुछ स्कूली बच्चों को शराब पीने के लिए ग्लास लाने को कहा। बच्चों ने अपने वालिदैन को इस बाबत बताया तो वो स्कूल पहुंचे। शराबी टीचर विक्रम की हालत को देखकर लोगों ने हंगामा किया और सरपंच देवेंद्र कोतवाल को वहां बुलाया। जिस सरपंच ने वालिदैन को जानकारी दी कि विक्रम को पहले भी कई बार तंबीह दी जा चुकी है। महकमे तालीम ने भी स्कूल के औकात में शराब नोशी पर उसे नोटिस दिया था और दूसरे स्कूल से उसे अटैच कर दिया गया था। स्कूली बच्चों के माँ बाप और पंचायत मेंबरान खाती टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल की जो वीडियो वायरल हुई है हमारे PS चांटी टोरा में, तो ये बड़े शर्म की बात है। मार्च में ही स्कूल खुले हैं, आजकल जो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो इस टीचर ने कल की हरकत से पूरा हमारा इलाका जो है और पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात हो गई है कि इनके टीचर जो हैं ऐसा कर रहे हैं। और मेरी अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से, खासकर CO साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि कोई भी ऐसा काम दूसरे टीचरों को सबक मिलना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही गलत बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक उस्ताद जो है, टीचर जो है ऐसी हरकत में मुलव्वस है। इसमें हम हर सूरत में जो है इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे और जो भी एक्शन होगा अंडर रूल स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हम उसके खिलाफ जो है वो इनिशिएट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आइंदा जो है ऐसी हरकत कोई भी टीचर स्कूल में न करे। ये बिल्कुल एक बहुत ही काबिल मज़म्मत हरकत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख लेंगे एक्शन। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका बहास तैयार करने की कोशिशों को धक्का लगा है। इस बात का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू में बुलाई गई अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग से हुआ। इस मीटिंग से बहुत सी इलाकाई सियासी जमातें दूर रहीं, जिसमें जम्मू की कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। पेश एक रिपोर्ट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू में वाक़े रिहाइशगाह पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के मनाजिर हैं। मीटिंग में अहम मसाइल बेशमूल इंसदाद तजावुज़ात मुहिम, प्रॉपर्टी टैक्स और JK-SSB पर तबादला ख्याल और सबसे बढ़कर कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में लगातार ताख़ीर पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर गौर व खौस किया गया। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की इस मीटिंग में बहुत सी इलाकाई पार्टियों के लीडरों ने शिरकत नहीं की। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस मीटिंग से दूरी इख्तियार की।
उन्होंने सिर्फ जम्मू में मुकीम अपने नुमाइंदे को इस मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JNK अपनी पार्टी, PDAP वगैरह जैसी पार्टियों ने अपोजिशन की इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। NC और कांग्रेस के लीडरों ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शिरकत न करने वाली पार्टियों के लीडरों पर बीजेपी के हाथों कठपुतली बनने का इल्जाम दिया। ऑल पार्टी मीट हुआ, बहुत सक्सेसफुल, और तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टीज आई थी। जो लोग नहीं आए वो शायद हुक्मरानों के हक के लोग हैं, इसलिए उनके साथ एफिलिएटेड हैं, इसलिए नहीं आए होंगे। वरना कोई भी ऐसी अपोजिशन पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के लिए फाइट कर रही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो कौन सी पार्टी नहीं कर रही है यहाँ ये मुजाहरे? रोज़ आया हो जाती है, ये कैसे आएंगे? इनकी दुकानें बंद होंगी, इनके मकान इनको वापस लिए जाएंगे, इनको प्रॉपरली फंडिंग होती है, चाहे वो बुखारी साहब की पार्टी हो, लोन साहब की पार्टी हो, आज़ाद साहब की पार्टी हो। ये हमारे साथ तो इनका कोई लेना देना ही, दे आर ABCD पार्टी, ये तो आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये आपको बहाने बनाएंगे हम सड़कों पे हैं, कहाँ किस सड़क पे हैं? ये तो टांग अड़ाने की बात होती है। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में कई पार्टियों के सर्द रद्दअमल पर बीजेपी ने जरूर राहत की सांस ली। बीजेपी लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोई अपोजिशन बचा तक नहीं है। अपनी नाकामियां हैं, उनके कारण से लोगों के बीच में इनका नाम खत्म हो रहा है। उसी के प्रयास ये करते रहते हैं समय समय पर कि इकट्ठे मिल करके चलेंगे तो शायद कुछ निकलेगा। ये खाली प्रदेश स्तर पर नहीं, पूरे भारत पर हो रहा है। अपने अपने गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर हालात ख़राब किए थे, जो भी समस्याएं पैदा की हुई हैं इन्हीं लोगों की हैं। इसलिए जितना मर्जी इस प्रकार की कोशिश करें, लोगों का साथ इनको नहीं मिलने वाला है। उधर सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए अपना सियासी मुहाज बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर कश्मीर पर है और बीजेपी की कोशिश है कि कुछ पार्टियों के साथ पसे पर्दा इत्तेहाद कायम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में NC और PDP जैसी बड़ी पार्टियां अपने कदम न जमा सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
तेरा नाम क्या है पूछे तो बता